ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کل میں نے جو اشتہار بنایا تھا گروپ میں بھی سینڈ کیا تھا، یہ مکمل پکسل لیب پہ تیار کیا گیا ہے، اور اس طرح کی کیلی گرافی جو ہے، اور نیچے دیکھ لیں، یہ اگر عام طریقے سے آپ کرتے ہیں کبھی بھی اتنا موٹا کر کے آپ نہیں لکھا سکتے۔ یہ کیلی گرافی کا جو طریقہ آپ کو سمجھایا تھا اسی کے مطابق یہ کی گئی ہے۔ ایک ایک جامع الگ کیا گیا، مسجد الگ، اللہ الگ، والی الگ، درخانہ در الگ کیا ہے، پھر کھانا الگ کیا ہے، اور اسٹیشن کی الف جو ہے یہ الگ سیٹ کی ہے، پھر اسٹیشن جو ہے یہ الگ سیٹ کی ہے۔ اس طرح سے سب کو ملا کے گروپ کر کے اس بٹن کے ذریعے سے یہ بہترین اور یہ گائیڈ لائن کا استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ کتابت کی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ جی آ جاتے ہیں اگلے سبق کی طرف، اور اگلے سبق میں ہم چل رہے تھے جی یہ بیزیئر پہ۔ بیزیئر کا استعمال بہت شاندار طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ بٹن ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی شیپ وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پلس کا بٹن ہے، آپ اس سے کاپی لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جتنے آپ دباتے جائیں گے کاپیاں آتی جائیں گی۔ اور یہ منفی کا بٹن ہے، آپ اسے پریس کریں گے تو یہ ختم ہوتی جائیں گی۔ یہ دیکھیں آخر میں ایک بچ جائے گی۔ اور یہ ان کی وہ سیٹنگ جاننے کے لیے ہے کہ کس پر آپ کام کر رہے ہیں۔ فی الحال مثال کے طور پہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں جس پہ میرا ایرو ہے، تو یہ دیکھ لیں اس کے دونوں کنارے جو ہیں یہ موٹے ہیں۔ اب اگر اس سے اوپر والی پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پریس کروں گا، یہ دیکھیں اوپر آ جاؤں گا۔ اس سے اوپر والی پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اور اوپر آ جاؤں گا، اور اوپر، اس طرح سے۔ اور یہ جو بٹن ہے یہ نیچے آنے کے لیے، کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی یہ سلیکٹ ہے اور آپ اس سے نیچے آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ یوں دباتے جائیں گے اس طرح سے۔ اوہ یہ تو منفی کے بٹن پہ، خیر یہ اس طرح سے نیچے آتے جائیں۔ اور یہ جو 5 ہے یہ ہمیں بتلا رہا ہے لیئر آپ کی کتنی ہے، کتنے آپ نے یہ بنائے ہوئے ہیں، لائنیں کتنی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ 5 آپ نے بنائی ہوئی ہیں۔ ہم مزید بڑھا لیں، یہ دیکھیں اب 11 ہو گئی۔ یہ کاپی کا بٹن ہے، آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو جس پہ یہ نشان لگا ہوا ہے اس کے نیچے کاپی آ جائے گی۔ آپ نشان کسی اور بٹن پہ لگا لیتے ہیں تو کاپی کسی اور بٹن کے نیچے آ جائے گی۔ یہ دیکھیں اس پہ لگا لیتے ہیں تو کاپی یہاں آ جائے گی، یہاں ہے تو کاپی نیچے آ جائے گی، اس طرح سے کاپی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اوپر والے بٹن ہیں۔ اب ہماری جو کل لائنیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں وہ 13 ہیں۔ جی نیچے والی لائن پہ آئیں۔ یہ بٹن اگر ہم پریس کرتے ہیں تو ابھی یہ کام نہیں کرے گا، لیکن جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ جو ہینڈل ہے ان کے ذریعے سے ہم اس لیئر کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، ہم کیسی وہ بنانا چاہتے ہیں، ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے دونوں کناروں پہ ملا دیا اس کو، اور اب میں یہاں کلک کرتا ہوں جی، یہ اس کو دبا کر یہاں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں نیچے بھی آ گیا ہے۔ اس کو جوڑنے کے لیے یہ بٹن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ اب ہم از خود نہیں جوڑ سکتے اس کو اس کے ساتھ، کیونکہ جب تک یہ جڑے گا نہیں اس کے اندر کلر نہیں بھرا جا سکتا۔ تو کلر بھرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے جوڑیں، اور جوڑنے کے لیے یہ بٹن استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اس بٹن کا کام یہ ہے کہ آپ ایک لائن لیں گے، اس لائن کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دوسری لائن لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا یہ بٹن کلک ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں آپ ہاتھ رکھیں گے، یہاں ہاتھ رکھیں گے یہاں لائن لگ جائے گی، جہاں آپ ہاتھ رکھیں گے وہاں لائن لگ جائے گی۔ جی یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں ہاتھ رکھا یہاں لگ گئی، یہاں رکھا یہاں، یہ جہاں جہاں ہاتھ رکھتا جاؤں گا وہاں وہاں لائن لگتی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی کافی ہے، بس میں اس کی سیٹنگ کر لوں اور اسی انداز سے جو ہے وہ اس کو ترتیب دے لوں۔
अब ये देखें, हम इस पे क्लिक करें, अब इसको इसके साथ जोड़ना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जोड़ेंगे तो रंग नहीं भरा जाएगा। जोड़ने के लिए ये नीचे वाला बटन जो है, ये ये आप देख रहे हैं, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखें जुड़ गए। अब इनमें हम कोई भी रंग भरना चाहें, कोई भी तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, ये रंग भरा गया है। और जो ओपेसिटी है इसकी आप कम करना चाहते हैं, ज्यादा गहरी डार्क लेना चाहते हैं, जैसी आप लेना चाहते हैं वैसी ले सकते हैं। और ये ग्रेडियंट कलर है, आप इनमें भी जो है वो कोई कलर ले सकते हैं। ये ऊपर जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये देखें बॉर्डर, इस बॉर्डर को खत्म करना चाहें, ये ब्लैक रंग का नजर आ रहा है, उसको खत्म करना चाहें खत्म भी कर सकते हैं। फिर इसकी जो सेटिंग है आप इस पर प्रेस करें और ये आपके पास एक शेप सी आ गई। आप इसको यूं यूं प्रेस कर लें और नीचे कर लेंगे। ये इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं इश्तिहार का, या कोई भी जो आप पसंद करते हैं। मजीद इसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो एक तो ये काम करता है जी। तो इस बटन पे अगर क्लिक होगा तो आप जहां भी हाथ लगाएंगे वहां पे लाइन लग जाएगी। और इन लाइनों को अगर इजाफी लग गई हैं, आप खत्म करना चाहते हैं, तो ये कांटे वाले बटन पे, ये नीचे जो मौजूद है ये पहला बटन, इस पे आप क्लिक करते जाएंगे तो एक एक खत्म होती जाएगी। और इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो हैंडल आपके सामने रूनुमा हो जाएगा। आप इसको जहां फेरना चाहते हैं, जैसी शेप बनाना चाहते हैं, जैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं, वैसा आप कर सकते हैं। इस तरह से इसको घुमा घुमा के, जैसा बहरहाल आपका मिजाज हो, फिर जोड़ना है तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा। और जोड़ने के बाद इनको आप ठीक करना चाहते हैं तो ये हैंडल वाले बटन पे ये आप प्रेस करेंगे और इसको जहां आप सेट करना चाहते हैं वहां आप सेट कर लें। बहरहाल इस तरह से ये डिजाइनिंग का काम किया जाता है। अब इसको आप यूं घुमाना चाहते हैं यूं घुमा सकते हैं, जैसी आपको शेप बहरहाल मतलूब है वैसी शेप इससे तैयार की जा सकती है। और ये जो है इस बटन पे आप प्रेस करेंगे तो जो आपने शेप तैयार की है उसकी जगह तब्दील कर सकते हैं। तो जहां भी आप फिट करना चाहते हैं उसको फिट कर सकते हैं। नीचे वाला ये बटन है, मैंने आपको बताया कि जिस पर ये निशान नजर आ रहा होगा वो लाइन जो है वो कट जाएगी, शेप कट जाएगी। आप एक एक को दबाते जाएंगे, एक एक कटती जाएगी। और ये जोड़ लगा हुआ है, इस जोड़ को खत्म करने के लिए ये देखें ये आपस में फासला आ गया है, तो हम इसको जोड़ चुके हैं। आपको ये जोड़ा हुआ पसंद नहीं आ रहा, आप इसे खत्म करना चाहते हैं, इस बटन को प्रेस कर दें, ये खत्म हो जाएगा। फिर आप कोई और अंदाज अपनाना चाहते हैं, हैंडल ऊपर से लें और इसकी हालत चेंज करें, मतलब यूं कर लें, इसको यूं कर लें। अब आप इस जोड़ने वाले बटन पे क्लिक करें तो आपके सामने ये आ जाएगा। देखें आम की तस्वीर जो है वो तैयार हो गई। इस तरह से बहरहाल शेप में तैयार की जाती है। ये तीनों बटन हो गए। ऊपर ये बटन बता दिया कि ये खत्म करने के लिए है। और ये बटन दरमियान में कहीं आप चाहते हैं कि मजीद हमें ये हैंडल नजर आए, मजीद आप दरमियान में कोई काम करना चाहते हैं एक लाइन के दरमियान, तो ये दरमियान में खुद ब खुद इस बटन के जरिए से ऑप्शन आ जाएगा हैंडल का, आप उसे यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा आप टेढ़ा करना चाहते हैं यहाँ से, ये इस तरह से। और ये जोड़ को खत्म करने के लिए है। और इसका काम जो है, ये जो है ये साइज बड़ा करने के लिए, ये देखें आप यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते
जैसा भी आप चाहें। ये आपने एक मर्तबा काम कर लिया, लेकिन आप फिर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो एडिट के बटन पे, ये शुरू में जो मौजूद है इस पे आ जाए, वहीं से खुल जाएगा। आप जो तब्दीली दोबारा करना चाहते हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम रंग भरना चाहते हैं तो हम यहाँ रंग भी भर सकते हैं। ये रंग भरा गया। बहरहाल इस तरह से ये बटन इस्तेमाल होता है। इसमें मजीद क्या बटन मौजूद हैं तो ये समझा दिया। ये साइज बड़ा करने के लिए, ये देखें, साइज बड़ा करने के लिए। और ये जो बटन है ये घुमाने के लिए, जैसे आप पहले भी इसे समझ चुके हैं। तो देखें किस जाविये पे आप शेप तैयार करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, दाएं करना चाहते हैं, बाएं करना चाहते हैं। आप यहाँ अगर तैयार करना चाहते हैं, बनाने के बाद भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अब हमने इसको क्लिक किया, इसको उठाया इधर से, यूं घुमा दिया। या हम मिसाल के तौर पे एक और कलर लाना चाहते हैं तो इस तरह से ला सकते हैं। ये बटन हो गया जी। नीचे आप देखें ओपेसिटी है, तो ये लाइन की ओपेसिटी है। आप नहीं, ये अंदर कलर की ओपेसिटी है, तो आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये 0 पे है तो अंदर कोई कलर हमें नजर नहीं आ रहा। अगर आप ये फुल कर देते हैं तो आपको वाइट नजर आएगा। फिर रंग भरना चाहें, जो भी भरना चाहें। और इसकी ओपेसिटी आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये देखें, ये ओपेसिटी है इसकी, ये आप कम भी कर सकते हैं। और नीचे कलर है, कलर दोनों तरह के हैं, सादा कलर भी है, ग्रेडियंट भी है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। और ये है स्ट्रोक विथ। ये जो बाहर हमें हाशिया नजर आ रहा है, आउटलाइन नजर आ रही है, उसको खत्म करना चाहें, उसको बढ़ाना चाहें, जैसा आप रखना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ये आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, दो किनारे आपस में मिले तो गोल होने चाहिए, या इस तरह से हो या इस तरह से हो, इसको सिलेक्ट कर लें। और इससे नीचे है जी, ये ओपेसिटी है, ये आउटलाइन की ओपेसिटी है। इसको आप बिल्कुल 0 कर देंगे तो आउटलाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 100 पे ले जाएंगे तो आउटलाइन बढ़ जाएगी। ये उसका कलर है कि आप कैसा कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने चूंकि यहाँ स्ट्रोक को बंद कर रखा है इसलिए हमें नजर नहीं। अगर हम स्ट्रोक खोल लेते हैं, ये देखें, हमें ये नजर आएगा। कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी, ये स्ट्रोक कलर है। ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। और सादा लगाना चाहें तो सादा लगा सकते हैं। जो भी आपका मन चाहे आप तब्दीली कर सकते हैं। तो ये बटन था इसका बीजियर का। मजीद आपको बता दिया, कोई तब्दीली करनी है तो चे जाए कि आप इसे काटें और दोबारा उस पे आए, बीजियर टूल पे आए, आप यहीं से एडिट का बटन दबाएं और कोई भी तब्दीली करनी है, बटन आपको समझा दिए। इस पर आपका क्लिक होगा तो जहां भी आप दबाएंगे लाइन लग जाएगी। और ये हैंडल वगैरह रूनुमा करने के लिए, तब्दीली करने के लिए, और इसके जरिए से आप इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा बीजियर टूल जो है वो मुकम्मल हो। इसके बाद एरो है। डिजाइनिंग में इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये देखें, बना बनाया एरो, हमें तीर का निशान जो है वो दस्तयाब होता है। और इसकी फिर मुख्तलिफ किस्में नीचे मौजूद है। आप ये देखें, एक ये इस पे क्लिक किया हुआ है, यानी आगे से तो तीर का निशान है लेकिन पीछे जो है वो बिल्कुल साफ है, सादा है। और एक ये है, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर भी जो है वो तीर का निशान है और नीचे भी लग गया है। और ये देखें नीचे गोल है, तो ये वाली साइड जो है ये गोल हो जाएगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, और इस तरह का चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। ये सारे स्टाइल इसके मौजूद है, जो भी आप लगाना। ये साइज है, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस साइज के जरिए से। ये एरो का साइज जो है, ऊपर वाला जो निशान है उसको
मोटा छोटा करने के लिए। ये उसी की ओपेसिटी है, आप कमो बेश कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं तो आउटलाइन आपको दिखाई देगी बस। और ये उसके कलर हैं, आप कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। ये स्ट्रोक विथ है, तो ये जो ब्लैक रंग सी हमें नजर आ रही है ये 9 पे है, आप चाहें तो इसको बढ़ा दें, चाहें तो इसको घटा दें, बिल्कुल खत्म कर दें, जैसा इश्तिहार के लिए आपको मुनासिब लगता है। ये उसी की ओपेसिटी है, ये देखें, ये ओपेसिटी जो है वो 50 पे है, तो आप इसको फुल कर देंगे तो देखें आप ब्लैक जो इसकी आउटलाइन है वो वाजे हो गई है। और अगर आप इसको कम कर देंगे तो आउटलाइन जो है वो मध्यम सी होती जाएगी। ये देखें स्ट्रोक कलर, तो ये जो हमें नजर आ रहा है कलर, ये ब्लैक में हो गया, व्हाइट में हो गया, किसी में भी कलर ग्रेडियंट में लगाना चाहते हैं ग्रेडियंट में भी कलर लगा सकते हैं। इस तरह से ये एरो इस्तेमाल होता है जी। ये बटन भी हमारा क्लियर हो गया। इस बटन में स्टिकर है, इंपोर्ट करना आया, और ये ड्रा आया, हाथ के जरिए से किताबत करना आया, शेप्स आई, बीजियर टूल आया, एरो आया, ये सारे मैंने आपको समझा दिया जी। इसके बाद ये चौथा बटन है। इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये बार खुलती है। इसमें एक चीज तो कलर है, मैंने आपको बताया था कि ये कलर नीचे जो आपका बैकग्राउंड लगा हुआ है उसको चेंज करने के लिए। आप जो है ये नहीं बैकग्राउंड चाहते जो लगा हुआ है, आप इस तरह का चाहते हैं ये लग जाएगा, आप इस तरह का चाहते हैं ये लग जाएगा, इस तरह का चाहते हैं जो भी आप तब्दीली करना, नॉर्मल कलर लाना चाहते हैं वो भी लग जाएंगे। इस तरह से ये कलर जो है ये बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। ट्रांसपेरेंट अगर आप बनाना चाहते हैं, पीएनजी बनाना चाहते हैं, किताबत को पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आपने अपनी डीपी बनाई है और उस डीपी को आप जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट में, ताकि आप अपने इश्तिहारात में अपनी डीपी भी इस्तेमाल कर सकें, या आप ग्रुप बनाए हुआ है शेर व शायरी का और उस ग्रुप का आप लोगो तैयार करते हैं, उस लोगो को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट में, तो पहले तो इस तरह से कलर लगा होगा और उसके ऊपर आप काम करेंगे, सारा काम हो जाएगा, दायरे लगाएंगे, लिखेंगे, जो भी हो गया। उसके बाद आप इस ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने काम किया है, दायरे में काम किया, दायरे लगाए हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, वो आपकी पीएनजी गोया स्टिकर बन जाएगा। उसे आप डिजाइनिंग में फिर जब चाहे इस्तेमाल करें। उसको सेव करना होगा यहाँ से, मिसाल के तौर पे यही हमने ये बनाया जी, ये हमारी वो सेव करना चाहते हैं, हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने का वही तरीका जो आपको पहले बताया, ये सेव हो गया। अब हम अपना कोई भी इश्तिहार लाना चाहते हैं और उस इश्तिहार पे इसी को दोबारा हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो अपनी गैलरी में जाएंगे, ये फ्रॉम गैलरी, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी में पिक्सल ऐप में आपने चूंकि बना के रखा है तो यहाँ पिक्सल ऐप में आ जाएंगे, ये हमारे सामने मौजूद है। हम इसे उठा कर लाते हैं, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। तो आप इसे उठाएं और यहाँ क्लिक करें, ये आपके पास आ गया जी। तो वो जो आपका लोगो होगा, वो लोगो जो आपने तैयार किया होगा, जहां उसको आप सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ लगाना चाहें, यहाँ लगाना चाहें, नीचे लगाना चाहें, वो इस तरह से आप अपने इश्तिहारात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह, ये इमेज साइज है, ये हमने एक साइज यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे देख लें, 1280 लिखा हुआ है। आप इसे 1500 में तब्दील कर दें, ये 1500 पिक्सल हो गए, इधर भी 1500 कर दें, ये साइज यहाँ से चेंज हो जाता है, ये साइज चेंज हो गया। अब ये जो इसका साइज है वो 1500 पिक्सल हो गया, आप 3000 कर सकते हैं। बहरहाल जो आपने ये चीजें सिलेक्ट की होंगी, बसों का ये छोटी पड़ जाएंगी, साइज बड़ा हो जाएगा, तो इन्हें खींच के फिर आप बड़ा कर लेंगे। इस तरह से तब्दीलियां की जा सकती है। इसके बाद ये क्रॉप का ऑप्शन है, ये कोई भी चीज आपके सामने आती है उसको काटने के लिए है, ये भी बसों का इस्तेमाल होता है। और जितना चाहिए ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। ये इमेज है, तो यहाँ पे बने बनाए जो हैं वो आप कह रहे हैं बैकग्राउंड है आपके पास, आप जैसा चाहें बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं,
जैसा आपको चाहिए है। ये बने बनाए बैकग्राउंड बहुत सारे यहाँ मौजूद है। ये देखें। जी, उम्मीद है ये भी समझ आ गए। तो इमेज में पिक्सल लैब के अंदर जो मौजूद तस्वीरें हैं जिन्हें आप बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो मौजूद है। फ्रॉम गैलरी, आप गैलरी से कोई बैकग्राउंड लाना चाहते हैं, ऊपर भी आया था फ्रॉम गैलरी, लेकिन यहाँ से अगर आप कोई चीज लाते हैं तो वो बैकग्राउंड के तौर पर सेट नहीं होगी। जैसे हम ये लेकर आए, देखें, ये लेकर आए आइकॉन इसका। अब ये हम अपनी मर्जी से जहां चाहें इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड नहीं है। देखें, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें हम कोई ना कोई तब्दीली अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन एक ये फ्रॉम गैलरी है, यहाँ से आप जो लाएंगे वो बैकग्राउंड के तौर पर सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर ये इश्तिहार में लेकर आता हूँ, अब ये बैकग्राउंड के तौर पर सेट हो जाएगा। अब मैं इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ये देखें, कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ये उधर इधर उधर नहीं हो सकता। तो बैकग्राउंड अगर आपने लगाना है तो बैकग्राउंड गैलरी से लेने के लिए ये तरीका इख्तियार ना करें। तो बेहतर यही है कि आप इस बटन पे, चौथे बटन पे क्लिक करें और यहाँ जो फ्रॉम गैलरी है इससे आप बैकग्राउंड लेकर आए। इंशाल्लाह आज कुछ ग्रुप में बैकग्राउंड में सेंड कर दूंगा, साथी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पीएनजी, ये आइकॉन होते हैं, मीनार होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इश्तिहारों में इस्तेमाल होती हैं। तो कुछ मेरे पास मौजूद है, वो मैं सेंड कर दूंगा। और अगर आप गूगल से ट्राई करना चाहें तो गूगल से ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी चीज का लिखें, मिसाल के तौर पे ये व्हाट्सएप का आपको आइकॉन चाहिए तो आप आइकॉन व्हाट्सएप लिखें या व्हाट्सएप आइकॉन लिखें और पीएनजी में लिख दें, या सिर्फ ऐसे ही आप उसको डाउनलोड कर लें जिसका बैकग्राउंड एक कलर का हो, व्हाइट हो या ब्लैक हो। फिर उसको आप ले आए अपनी इस बैकग्राउंड रेजर में, और उसका जो बैकग्राउंड है उसको इसके जरिए से, जो कल मैंने आपको समझाया था, डिलीट कर दें आप। तो ये फ्रॉम गैलरी है। इसके बाद फ्रॉम कैमरा है। फ्रॉम कैमरे का मतलब ये है कि आप कैमरे से कोई तस्वीर डायरेक्ट जो है वो इस स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। जैसे ये देखें, मैं ये मेरे पास दीवार की तस्वीर आ रही है, तो ये तस्वीर मैं लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड के तौर पर, तो इसकी तस्वीर खींच के जो है वो मैं तस्वीर लगा सकता हूँ। ये हमारा सबक था जी इससे मुतल्लिक, ये चौथे बटन से मुतल्लिक। इसके बाद ये आखिरी इसका बटन है और फिर हमारी पिक्सल लैब अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। तो इस बटन के बारे में चंद बातें हम आज पढ़ लेते हैं, कुछ कल पढ़ लेंगे। ये रोटेट है, रोटेट के जरिए से आप वो तब्दीली कर सकते हैं, अ, घुमा फिरा सकते हैं। ये देखें, बदल गया है ये, और ये देखें, और ये देखें, ये देखें, इस तरह से आप इश्तिहार की साइड को चेंज कर सकते हैं। और एक ये बटन है, इसके जरिए से वाइडनेस दरमियान में आ जाती है और इर्द गिर्द जो है वो ब्लैक रंग सा आ जाता है। और इसमें आप कोई रंग और भी शैडो पे लाना चाहें, ये लाना चाहें, ये आ जाएगा। कोई और कलर लाना चाहें, ये लाना चाहें, इस तरह से ये तब्दीली आ जाती है। और अगर इस कलर को आप बढ़ाना चाहते हैं, जो शैडो पे है, बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं, जैसी आप तब्दीली चाहें। ये एक बटन ये है। ये देख, इसके जरिए से इश्तिहार जो है वो मध्यम सा आपको दिखाई देगा, या जो आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं उस बैकग्राउंड पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उस इसकी वजह से उसकी वाइटनेस को कम किया जा सकता है, वाइटनेस को बढ़ाया जा सकता है। ये देखें, इस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये लकीरें लगी हुई हैं, तो जैसी ये शेप इन्होंने बनाई हुई है वैसा ही काम है इसका। आप इसको दबाएंगे तो इसके ऊपर ये देखें, इनको छोटा बड़ा किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ये देखें, ये बड़ी हो गई हैं, ये छोटी हो गई हैं, और ज्यादा हो गई हैं, इस तरह से।
اس کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی اس کی وائڈنس کو بڑھانے کے لیے اشتہار جو ہے یہ دیکھیں اور لک دے گا آپ کو، کم کرتے جائیں گے اور لک آتی جائے گی. تو اشتہاروں پر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مختلف انداز اشتہارہ میں دستیاب ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ مزید آگے پڑھ لیں گے، اس کا آخری سبق ہو جائے گا اور یہ پکسل ایپ ہماری کل ختم ہو جائے گی. اور کسی ساتھی کو چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں تو رضوان بھائی کا گروپ ہے، اس کا لنک جو ہے ہر روز گروپ میں آتا ہے، وہاں سے اسباق دوبارہ دیکھ لیا کریں اور اس کی اچھی طرح مشق کریں. اس طرح کا اشتہار بنانے کی کوشش کریں. آپ ہاتھ کو جتنا چلائیں گے اتنا ہی چلے گا. اب یہ جو باتاریخ لکھا ہوا ہے یہ 2 نقطے میں نے خود بنائے ہیں اور آپ کو بنانے کا طریقہ جو بتایا تھا اسی طریقے کے مطابق بنائے ہیں. اور یہ جو خے ہے اس کو میں نے کاٹا ہے، کیونکہ اگر میں اسے نہ کاٹتا تو یہ خے جو ہے یہ ریک کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی اور صحیح طرح سے یہ لکھا نہیں جا رہا تھا. تو اس کی کیلیگرافی جو ہے وہ بنانے کے لیے اس طرح سے میں نے تبدیل. تمام دوستوں سے بھرپور گزارش ہے کہ آپ مشق کیا کریں، یومیہ تھوڑی کر لیں لیکن کریں ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.